हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है क्या? आवाज़ आ रही है क्या मेरी? जस्ट अ सेकंड। हेलो दी, Hello. हेलो। एम आई ऑडिबल दी? Yeah, you're audible. Am I audible? ओके। या, आई मीन, ओके। So, uh, thanks for joining in. Hello everyone. So my name is Satyam. I'm from Chemical Part 1 of IIT BHU, and today is yet another episode of Chit Chat with Seniors, episode number 16. And today we have with us, I'm sorry, today we have with us Shloka Negidi. She was selected for IASC, INSA in ASI Summer Research Fellowship Program 2020 and 2021, Spark Summer Research Internship 2022 at IIT Roorkee, and MITEX Global Link Summer Research Internship 2021, Canada. She was also a part of Indian Music Club. She is an incoming PhD at University of California in the field of biomolecular engineering and bioinformatics. She was also a DADT Voice Scholar, Germany. So, anything you want to add that I think that that you think that I have left? No. It's all covered. Thank you for Yeah, the introduction. I'm. Yeah, you're most welcome. So, can we start? Yeah. Okay. So, can you please tell us about your college journey, how it all has been through all those 4 years that some years you have fortunately spent offline. So can you tell us something about that? Yeah, so my college life has been very wholesome, I would say. I've experienced almost every aspect of college life which everybody aspires to. And yeah, I mean, those 2 years which we spent at home, that was also something which I enjoyed and something which we all required, at least our batch, because the first 2 years of our college life were मतलब इतना मस्ती किया था, इतना ज़्यादा हम लोग पूरे टाइम we were involved in clubs and then also managing our academics, but somehow we needed a break, I think, and we got that, and उसमें थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट किया and देखा कि क्या करना है लाइफ में.
तो वो ब्रेक अच्छा था एटलीस्ट फॉर सम ऑफ अस. तो समराइज मैं ऐसे करूँगी कि इट हैज़ बीन अ लॉट ऑफ फन along with इतनी सारी learnings है मेरी कॉलेज से that मतलब it has completely changed me as a person since I came my first year and now after 4 years when I've graduated. So हाँ काफी wholesome रहा है अगर one word में summarize करूँ. ओके, और अगर थोड़ा इलेबोरेट करके समराइज करें कि आपका फर्स्ट ईयर कैसा था, सेकंड ईयर कैसा था, या फिर मतलब आप कॉलेज में आए, आपने क्या एक्सपेक्ट करा था और आपको रियलिटी में क्या एक्सपीरियंस करने को मिला? अरे तो ऐसा था कि 11th 12th मेरा थोड़ा मेस्ड अप गया था एंड व्हेन आई गॉट IIT PHU एंड फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग मतलब आई वॉज फाइन विद इट. मतलब मैं बहुत ज़्यादा खुश भी नहीं थी और बहुत ज़्यादा दुखी भी नहीं थी. बट एक ये डिटर्मिनेशन था फर्स्ट ईयर में कि आई रियली वॉन्ट टू प्रूव माई सेल्फ बिकॉज आई थॉट दैट 11th 12th में मैंने उतना एफर्ट नहीं डाला. सो आई रियली वॉन्टेड दैट एटलीस्ट फर्स्ट ईयर में तो एकदम मैं I would stay away from every distraction possible in college and just focus on my academics. So, but ऐसा भी नहीं था कि I did not take part in clubs. I was a part of Indian Music Club since my first year, and also I used to play badminton. So I was a part of the sports council as well in one way. So first year में I managed everything, but always kept academics as the priority. So यही था. तो आई थिंक ओवर द इयर्स जो what made difference was my dedication in the first year, which I think सेकेंड ईयर में थोड़ा समझ में आ गया चीज़ें कैसे होती हैं कॉलेज में एंड देन इट वाज इजी टू मैनेज स्टफ. सो आई वी यूज्ड टू गो टू अ लॉट ऑफ आउटफेस्ट्स फर्स्ट ईयर के एंड में एंड देन सेकेंड ईयर में भी लॉट्स ऑफ आउटफेस्ट एंड इवेंट्स भी होते थे कॉलेज में. तो उसमें भी हम लोग परफॉर्म करते थे एंड यूज्ड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम स्पेंड IMC में मैंने बहुत टाइम स्पेंड किया है. तो मेरी कॉलेज लाइफ बहुत ज़्यादा मैं कहूँ कि कुछ सेक्शंस में बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड थी. एक तो मेरी रिसर्च और मेरी एकेडमिक पोर्शन तो था ही बट उसके अलावा बहुत सारी कॉलेज लाइफ हैज बीन माय IMC फ्रेंड्स एंड द क्लब एंड द सीनियर्स एंड एवरीबडी. सो यही था. बाकी थर्ड ईयर तो पता नहीं कैसे निकल गया. थर्ड ईयर में केवल आई हैव मेमोरीज ऑफ इंटर्नशिप्स एंड अप्लाइंग फॉर PhD प्रोग्राम्स. बस यही मेमोरी है और कुछ नहीं. और मैं बहुत ही मतलब ऐसा था कि जब घर पे थे सो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू सोशलाइज ऑनलाइन. मतलब तो बहुत लोगों से टच छूटता गया और मैं बहुत इस मामले में थोड़ी ऑकवर्ड हूँ कि ऑनलाइन नहीं हो पाता मेरे से. Then college में आने के बाद we caught up with a lot of people and the last semester ending the second last whatever time we had left towards the end in college उसमें मैंने बहुत मज़े किए हैं क्योंकि उसमें सब चीज़ें सॉर्ट हो गई थी एंड मोस्टली पीपल वर फ्री. तो उसमें मैंने वाराणसी एक्चुअल में एक्सप्लोर किया. सो इन माई फोर्थ ईयर विच वॉज वेरी लेट. लेकिन मतलब वाराणसी एक्चुअली क्या है और उसको मैंने फोर्थ ईयर में ही समझा. सो यही था मतलब समराइजेशन. ओके, और मतलब अब नाउ कि आप कंप्लीट कर चुकी हैं, अब आप ग्रेजुएट हो चुकी हैं, तो समथिंग दैट इज स्टिल थिंक कि यार मैंने ये मिस कर दिया या मेरे को ये करना चाहिए था, समथिंग अ लिटिल रिग्रेट और मे बी समथिंग आपने मिस आउट करा, आपको लगता है? मतलब मिस आउट यही खाया कि फर्स्ट ईयर में मैं थोड़ा सा और फर्स्ट ईयर में मैं थोड़ा सा और सिटी को एक्सप्लोर कर सकती थी जो मैंने नहीं किया. और लास्ट में जब व्हेन आई वाज लीविंग कॉलेज तो मतलब कॉलेज से घर आने के 10 दिन तक मैं लिटरली मतलब आई कुडंट बिलीव कि वो हो गया खत्म. मतलब मुझे ऐसा लगा कि कॉलेज का जो एंड हुआ वो बहुत ही अब्रप्ट सा हो गया और आई वांटेड मोर ऑफ इट. तो अगर फर्स्ट ईयर में भी थोड़ा और करा होता तो वो थोड़ा और बेटर लगता. एंड उसके अलावा एक एकेडमिक एस्पिरेशन भी थी मेरी. आई वांटेड टू स्टार्ट अ क्लब, बायोइन्फॉर्मेटिक्स क्लब इन द कॉलेज. मेरा रिसर्च एरिया था बायोइन्फॉर्मेटिक्स और व्हेन आई गॉट इंट्रोड्यूस्ड टू दिस subject. So I really thought that it is something which people should at least know exists because I did not know and it was not a part of our course structure also. So मैं चाहती थी कि जैसे जियो इन्फॉर्मेटिक्स क्लब था नया बना था एंड जैसे कॉप्स है सो आई वांटेड टू स्टार्ट बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्लब ऑल्सो. बट वो
मेरी प्रोक्रेस्टिनेशन ले लो या लेजीनेस ले लो, लैक ऑफ रिसोर्सेज एंड टाइम, वो नहीं हो पाया। तो एक वो बहुत बड़ा रिग्रेट है मुझे कि वो मैं नहीं कर पाई। ओके। इसके अलावा ये पूछना था कि कुछ मतलब जैसे हर इंसान कॉलेज अपना कैंपस काफ़ी बड़ा है, तो कोई ऐसी जगह थी जहाँ आपको लगता हो कि यार यहाँ मेरा सोलेस इन सॉलिट्यूड है कि अगर मैं अकेली आऊँ, मैं यहाँ थोड़ी शांत रह सकती हूँ, थोड़ा मतलब थिंक कर सकती हूँ, थोड़ा सोच सकती हूँ अपने लाइफ के बारे में। जैसे कभी-कभी लोगों को क्वार्टर लाइफ क्राइसिस होती है, तो जाके बैठूँ वहाँ पे। अकेले तो नहीं यार, अकेले तो नहीं, बट मेमोरीज उस जिस बिल्डिंग थी। एंड मतलब since I was an instrumentalist, so we used to practice whole nights and sorry, हाँ सॉरी, हाँ तो मतलब हम पूरी पूरी रात भर प्रैक्टिस करते थे। कभी तो मतलब सुबह से शाम प्रैक्टिस ही हो रही है और फिर कोई समोसे खरीद के ला रहा है, कोई फ्राइड राइस ला रहा है और हम वहाँ बस हाथ में लेके खा रहे होते थे। तो एडीवी के साथ बहुत मेमोरीज हैं। इवन विंटर्स में इतना फॉग हो जाता था कि वी कुड फ्रॉम द आईएमसी बिल्डिंग वी कुडंट सी द एडीवी का गेट, मेन गेट। तो वो मतलब क्लब मेंबर्स के साथ बेसिकली वॉट एवर टाइम आई स्पेंट इन एडीवी दैट हैज बीन वेरी स्पेशल, क्योंकि सबसे ज्यादा टाइम वहीं स्पेंड किया है हमने। और हाँ आई थिंक दैट एरिया मतलब उसके साथ अलग ही अटैचमेंट है एडीवी ग्राउंड के साथ। मतलब दैट होल्ड अ स्पेशल प्लेस इन योर हार्ट आई थिंक। या 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 इट डज होल्ड। बाकी की अदर पार्ट्स ऑफ कॉलेज, मतलब अदर पार्ट्स ऑफ द कैंपस भी है, बट एडीवी जितना तो नहीं था। मतलब लाइब्रेरी में भी मैंने बहुत टाइम स्पेंड किया है, तो लाइब्रेरी भी मुझे जब व्हेन आई वाज लीविंग कॉलेज तो ऐसा लगा कि ओ लाइब्रेरी नहीं देख पाऊंगी दोबारा। उससे भी एक अलग हो गया था अटैचमेंट एंड तक। बट हाँ मतलब लाइब्रेरी में मैं अकेले भी आती थी और फर्स्ट ईयर में तो उससे एक अलग मतलब उस वहां पे मुझे पीस मिलता था एटलीस्ट कि यहाँ से मैं कट आउट हो सकती, क्योंकि हॉस्टल में कभी कभी होता था कि व्हेन आई रिक्वायर्ड टाइम टू स्टडी विद अ लॉट ऑफ फोकस, तो लाइब्रेरी में मैं तब चली जाया करती थी और फिर वहां पे मैं एकदम कट ऑफ हो जाती थी कि कुछ अभी किसी से बात नहीं करनी उतना टाइम। तो वहां मेरा एक पर्सनल टाइम मिलता था, बट अदरवाइज एडीवी एडीवी ग्राउंड्स। okay. So now coming to our academic pursuits. So in this era where everyone is just rushing to either just business or data analytics or coding, so how did your interest develop in pharmaceutical engineering? Or as much as you pursued proper research in that and did some internships, and now you are trying to pursue PhD. So how did it all came by? So sorry. So basically, I knew since my first year that I didn't want to get into corporate job immediately after college. I wanted to explore pharma. I would not say कि I took pharma or I opted for pharma by choice. I just got it, but I did not want to leave the field unexplored. So when I came to college, like based on what seniors told me and everybody, they said that try for a brand change. Mostly this was the suggestion which I got. But still the orientation which we had, the department orientation which we had, it kind of interested me into exploring कि एक बार देखते हैं कि क्या है. And I had a hunch, I mean I liked biology a little bit, so इसलिए मुझे ट्राई करने का मन था. सो फर्स्ट ईयर में आई जस्ट डिड माई कोर्स वर्क और कुछ भी नहीं, जो भी कोर्स वर्क था आई जस्ट लिटरली मतलब उसी को मैंने रिलीजियसली पढ़ा। एंड आफ्टर दैट आई जस्ट केप्ट ऑन एक्सप्लोरिंग एक्सप्लोरिंग कैसे कि कोर्सेज किए मैंने बहुत सारे। एंड आई वुड बेसिकली लुक इन टू फॉरन में what is the scope of healthcare, and if I can identify a field where there is technology also involved in healthcare. So तो इतना कॉन्स्टेंटली ये सॉरी कॉन्स्टेंटली ये सर्च वर्च करा, कोर्सेज किए, तो आई केम टू अ फील्ड ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स। एंड बायोइन्फॉर्मेटिक्स इज ऑल्सो वेरी बिग डोमेन। सो इसमें भी देर आर डिफरेंट एस्पेक्ट्स, जीनोमिक्स होता है, प्रोटियोमिक्स होता है। तो मतलब फिर वो चीज़ें बाद में क्लियर हुई एंड देन आई फनल डाउन टू माई स्पेसिफिक रिसर्च एरिया। तो वो इंटर्नशिप्स भी मैंने उसी फील्ड में की।
एक by chance there was one professor in pharma. There was only one professor who worked with bioinformatics. So I just worked in his lab for, I mean, I'm still working with him. So it's 2 years or so I've worked with him. So it just kind of, the interest in the field kind of developed with time. But यही था कि exploration से ही मिला मुझे वो field. So कि आपने मतलब बाकी चीजें एक्सप्लोर करके एक बार देखी क्या कि ये भी देखते हैं, मतलब रस था आपके ब्रांच के सभी लोग कर रहे होंगे? हाँ, मतलब नहीं किया मैंने एक्सप्लोर, तो मैंने कभी सीपी ट्राई भी नहीं किया। पता नहीं, बिकॉज मेरे को वो पता नहीं, आई हैव ऑलवेज हैड दिस थिंग कि आई न्यू आई वुड नॉट बी एबल टू एस in CP. There are lots of students who are better than me, who are going to be better in this. So, इसलिए I just did not try. I wanted to do something different where I can stand out. जो भी है, मतलब this was something which I had in my mind. So इसलिए मैंने, not इसलिए, लेकिन this was one of the reason I didn't want to get into coding वाला side या sit for placements or anything. I wanted to do something else and I wanted to use my field. So ऐसा नहीं था कि मैं 4 साल का किसी चीज में बीटेक करूं and then I am not doing anything which is related to it. So it was a personal decision, and that's why probably I enjoyed the academic part of my college life as well. ओके, मतलब आप इसमें कोर में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड थी, फिर आपको उसी में था कि मेरे को इसी में करियर भी परस्यू करनी है, तो कभी-कभी तो फिर वो अकेलापन आपको हिट करता होगा एंड आई गेस कि बाउट्स ऑफ डिप्रेशन भी हिट करती होंगी कि मैं तो अकेली हूँ, या आई गेस कि 1-2 ही लोग आपके साथ रहे होंगे। तो मतलब उस टाइम पे आपने कैसे खुद को समझाया या कंसोल करा कि नहीं, आई वांट टू जस्ट कंटिन्यू विद दिस? हाँ, ये हुआ था, और मुझे याद है अच्छे से। बेसिकली हमारे साल से सेकेंड सेमेस्टर में भी देयर वाज अ चांस ऑफ ब्रांच चेंज. सो बाय सेकेंड सेमेस्टर यू मेक अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स whom you rely upon, और मतलब जो यू फील कि यार ये लोग तो साथ में रहेंगे अब 4 साल एटलीस्ट ब्रांच वाले. और ऐसा हुआ था कि सेकेंड सेमेस्टर में एवरीबडी गॉट देयर ब्रांच चेंज, मतलब ऑल माय फ्रेंड्स, एंड आई वाज द ओनली वन हु ऑप्टेड नॉट टू चेंज माय ब्रांच. तो ऐसा अचानक से इट वाज लाइक देयर इज नोबडी. मेरी ब्रांच में अब कोई भी नहीं है, तो लोनलीनेस स्ट्राइक हुई थी सेकेंड ईयर के एंड में. एंड आई यूज टू हैव some very very good friends in my branch जिनके साथ I used to study, we used to share notes, so things were very working very nicely at that time, and I thought okay we can get through this together. But जब अब पता चला कि अकेले हो गई अब मतलब सब कुछ खुद करना है, पढ़ना भी खुद है सब्जेक्ट के लिए, तो थोड़ा सा स्ट्राइक हुआ था. तो मैं काफी उस समय, बहुत ही गंदा फेज था सेकेंड सेमेस्टर. एंड ऑल्सो द फैक्ट कि आई डिड नॉट ऑप्ट फॉर अ ब्रांच चेंज, ये कोई गलत डिसीजन तो नहीं है. दैट वाज आल्सो समथिंग व्हिच आई कॉन्स्टेंटली यूज्ड टू पॉन्डर अपॉन कि ऐसा ना हो कि जिन्होंने ब्रांच चेंज किया है बाद में फिर दे आर गेटिंग बेटर ऑप्शंस देन मी एंड आई एम स्टिल फिगरिंग आउट क्या करना है. तो बहुत ही बिकॉज दैट वाज माय पर्सनल डिसीजन नॉट टू गेट अ ब्रांच चेंज, तो एंड ऑल्सो लूजिंग फ्रेंड्स इन द प्रोसेस, सो बहुत ही वियर्ड था. बट इन द लॉन्ग रन आई रियलाइज कि वो अच्छा ही हुआ, because since I knew I was alone now, so I have to do everything myself. So I did not depend on anybody. कोई नहीं भी है साथ में पढ़ने को तो पढ़ना है. तो वो एक इंडिपेंडेंस आई, एक फ्रीडम आई, और आई स्टार्टेड टू ऑल्सो टॉक टू पीपल फ्रॉम अदर फील्ड्स. तो उससे एक मेरा होराइजन एक्सपैंड हुआ, नॉलेज बेस एक्सपैंड हुआ कि दूसरे फील्ड के लोगों से पर्सपेक्टिव मिलने लगा. तो अच्छा ही हुआ बाद में कभी सोचती हूँ तो. बट हाँ, उस टाइम बहुत अजीब सा हो गया था सेकेंड सेमेस्टर के एंड में. मतलब जैसे अभी भी है कि काफी लोग कोर करना चाहते हैं बट ड्यू टू पीयर प्रेशर उनको लगता है कि मे बी रॉन्ग डिसीजन होगा या मे बी मैं स्टक हो जाऊंगी आगे या हो जाऊंगा. तो मैं पूछना चाहता हूँ कि इफ समवन लाइक हिम और हर इज वाचिंग यू, कि आपने इतना करा, तो मतलब आप उसको बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस क्या दे सकती हैं कि लोनलीनेस कैसे खत्म करें या अकेले कैसे पढ़ें, अगर वो थोड़ा ज्यादा एक्सट्रोवर्टेड ऐसे नेचर का था अभी तक एंड नाउ ही इज ऑल अलोन लोनली, मतलब हाउ टू कॉम्बैट दिस? देखो, दो तीन चीजें हैं. पहले तो यू हैव टू आइडेंटिफाई योर लिमिट्स. आई न्यू दैट आई विल नॉट बी एबल टू डू, इवन इफ आई ट्राई टू सप्लीमेंट माई रिसर्च विद सम कोडिंग, कि मैं प्लेसमेंट की भी तैयारी कर लूँ और थोड़ा रिसर्च भी देख लूँ, बाद में देखेंगे कि जहाँ पे बेस्ट मिलेगा.
तो आई न्यू आई कुड नॉट हैव डन दैट, मतलब इतनी कैपेसिटी भी नहीं थी, और मेरे को पता था कि आई वुड हैव बीन लिटरली, मतलब ना इस साइड ना उस साइड। तो इसलिए मेरे को पता था अपनी कैपेसिटी से कि आई कैन ओनली डू वन थिंग, एंड दैट इज, मतलब नो, मतलब मेरे को बहुत लोगों ने गाइड भी किया, मेरे फैमिली में भी और मेरे फ्रेंड्स में भी, कि आई शुड डू व्हाट आई लाइक। एंड आई हैड सम फ्रेंड्स हु आर फ्रॉम, मतलब who are from these circuital branches but they're still doing research, तो उन लोगों के लिए तो और भी टेम्पटेशन है ना, मतलब they know कि they'll get a good package but still they opt research। मेरे को तो ऑप्शन भी ये था कि अब मैं नहीं करूंगी रिसर्च तो क्या पता मिले भी कि नहीं जॉब कोडिंग में। तो इसलिए आई हैड दिस, मतलब एक तरफ आई वाज स्टिल मोर इंक्लाइंड। तो बहुत एंड मतलब ऐसा है कि अगर तुम्हें क्लियर नहीं हो, तुम्हें लगता है कि यू कैन मैनेज बोथ, तो यू कैन स्टार्ट विद बोथ थिंग्स एंड देन सी कि तुम्हें इवेंचुअली कहाँ मजा आ रहा है, एंड देन जस्ट फाइनली टेक दैट वन लाइन। Otherwise, if you are like me, who knows you cannot manage both stuff, so then just kind of talk to people, connect with people, and basically just choose one thing and get going with that. उसमें अब कैसे you will combat the loneliness, that depends on your nature, but it is not that lonely. I mean, if you love your subject, if you love your research or your work, then you will not feel lonely, I think, because it will always attract you towards getting back to the work. So whenever I used to work on my research project, तो भले ही कोई और नहीं होता था, but since मुझे इंटरेस्टिंग लगता था वो काम, so I used to come back to it after a point. तो काम के लिए तो लोनलीनेस कभी फील नहीं होगी, बट ये है कि हाँ, यू हैव टू स्टार्ट एंजॉइंग योर ओन कंपनी। अब वो मतलब अपने तरीके से कर सकते हो। और वैसे कॉलेज में अगर हो तब तो पता है बहुत सिंपल है, जस्ट फाइंड अ स्टडी पार्टनर, मे बी स्टडिंग समथिंग एल्स। जैसे मेरी रूममेट है, शी यूज टू शी वॉज इन सिविल एंड शी ओनली यूज टू डू सीपी, बट वी यूज टू सिट टुगेदर एंड स्टडी ऑल्सो एट टाइम्स। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि शी इज स्टडिंग समथिंग एल्स या आई एम डूइंग समथिंग एल्स, इट्स जस्ट दैट शी इज देयर एंड एक स्टडी पार्टनर रहता है, तो वो लोनलीनेस नहीं रहती। मोस्टली वो घर में रहती थी, तो कॉलेज में तो वो नहीं ही होगी। तो ओके, तो मतलब अब लगता है कि आई गेस कि एक बड़ा चंक हमने कंप्लीट करा है एकेडमिक्स का, जो काफ़ी लोगों को डाउट्स थे और आपके परसूट्स थे। अब आते हैं आई गेस कि क्लब्स पे, और आपने कहाँ कहाँ रियल कॉलेज लाइफ एक्सपीरियंस करा, कॉलेज कल्चर एक्सपीरियंस करा होगा, फ्रेंड्स आपके कहाँ बने होंगे। सो मतलब यही है कि आप कहाँ कहाँ इंगेज थी जब आप फर्स्ट ईयर में आई, तो सबको एक्सप्लोरेशन के लिए कहा जाता है, तो आप कहाँ कहाँ मतलब कॉलेज में आते आपने कहाँ कहाँ इंगेजमेंट थोड़ी अच्छी बनाने की कोशिश की थी। हम्म तो कॉलेज में जब मैं आई थी तो मैंने दो ही क्लब ज्वाइन किए थे, एक इंडियन म्यूजिक क्लब और एक बैडमिंटन। तो मतलब बैडमिंटन में मैंने पूरा एक साल परस्यू किया था। आई टुक पार्ट इन स्पर्धा एंड ऑल्सो ट्रिपल सॉरी आईआईटी दिल्ली का एक स्पोर्ट्स टेक करके फेस्ट होता है, तो उसमें भी आई वेंट। बट आफ्टर अ पॉइंट, फर्स्ट ईयर में तो तुम कर लो काफी कुछ, बट आफ्टर अ पॉइंट यू नो कि अब नहीं हो पा रहा है मैनेज। बहुत ही टायर्ड हो जाती थी मैं स्पोर्ट्स के, क्योंकि उस समय बैडमिंटन, अभी तो बैडमिंटन कोर्ट बन गया है, जिम खाना खुल गया है, बट उस समय हमें बहुत दूर जाना पड़ता था प्रैक्टिस के लिए। अभी तो तो एसएससी भी हो गया, स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर। हाँ एग्जैक्टली वही है ना कोर्ट बैडमिंटन। अब तो बहुत ही अच्छा कोर्ट बन गया है, अब बहुत ही पास है। बट उस समय देयर वाज नो बैडमिंटन कोर्ट, और बीएचयू का एम्फी थिएटर था वेयर वी यूज्ड टू गो फॉर प्रैक्टिस, और साइकिल होती थी उस समय। अब इतना थक के ऊपर से इतनी गर्मी में 5 बजे तक क्लासेस, उसके बाद फिर इमीडिएटली स्पोर्ट्स का वो चेंज करके स्पोर्ट्स के लिए जाना, मतलब उतना डेडिकेशन मेरे को नहीं आया। मैंने किया, बहुत कोशिश किया, बट वो मैनेज नहीं हो रहा था। और फिर आईएमसी का भी होता था, कभी कभी जरूरत पड़ती थी, तो आई कुड नॉट मैनेज बोथ। और जब मैं रूम आती थी तो मैं इतना ज्यादा ड्रेन हो जाती थी कि आई मेरे को पढ़ाई का तो फिर हो ही नहीं पाता था, मतलब। सो तो मेरे को इवेंचुअली फिर चूज करना पड़ा कि एक ही चीज करनी पड़ी, क्योंकि मैं दोनों एक्चुअली दोनों क्लब्स में इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा थी। अगर थोड़ा बहुत भी होता तो हो जाता मैनेज, बट दोनों में थी, तो मैंने वही सोचा कि व्हाट इज समथिंग विच आई कैन लिव विदाउट। तो मैंने सोचा म्यूजिक तो नहीं हो सकता, म्यूजिक तो चाहिए ही। तो इसलिए बैडमिंटन क्विट करना पड़ा। बट बाद में फिर जब भी कभी टाइम मिलता था तो खेल लेती थी ऐसे रिक्रिएशनली विद फ्रेंड्स, बट अदरवाइज फिर आईएमसी आई कंटिन्यूड, मतलब पूरा टुवर्ड एंड तक पूरा फिर आईएमसी मैंने किया साथ में।
ओके। और मतलब आप बार बार कह रही हैं कि आईएमसी में आपकी इतनी इन्वॉल्वमेंट थी, एंगेजमेंट थी, या मतलब जब आपको वो मॉरल डिलेमा हुआ आपने फिर भी आईएमसी को चुना। सो आई मीन, how did you start with music, not in college but in life? How did you start with music, how you went through it, how you grew through it? So, if you like to ओके। explain. मतलब सो म्यूजिक, like I've been attached with music since childhood. I remember somebody gifted me a छोटा वाला कैसियो जब मैं आई थिंक 5 साल या 4 साल की, जब मेरा बर्थडे था। और वो छोटा वाला कैसियो था और मैं उसको बस बजाने लग गई। तो माय पेरेंट्स फाउंड कि इसको कुछ तो मतलब शी लाइक्स म्यूजिक, तो उसको क्लास में डाल देते हैं। देन मेरे को उन्होंने इंस्ट्रूमेंटल, तो मैं हारमोनियम वगैरह बजाती थी, सो इंस्ट्रूमेंटल क्लास में डाल दिया। एंड पियानो में ऐसी कीज वीज, एक हाथ से चलाना, नॉट पियानो मतलब कैसियो। और हारमोनियम मैंने सीखा, और फिर 2 साल मैंने सीखा, और फिर समहाउ एक इवेंट में हम लोग गए विद माय म्यूजिक टीचर एंड शी हर्ड मी सिंगिंग। तो उन्होंने कहा ये तो अच्छा गाती है, तो फिर मेरे को वोकल ट्रेनिंग्स भी देनी शुरू कर दी। तो वहां से भी मैंने क्लासिकल म्यूजिक सीखा, इंडियन क्लासिकल। तो हारमोनियम along with Indian classical. So I have been learning music. I mean, not now, but I have learned music since when I was in class fourth, I think. Class fourth या उससे पहले भी। तो ये था, एंड देन धीरे धीरे मुझे ज्यादा इंटरेस्ट ना इंस्ट्रूमेंट्स में आने लगा। आई वॉन्टेड टू ट्राई एवरी इंस्ट्रूमेंट। तो स्कूल में जब मैं थी, हमारे स्कूल में देयर वाज संतूर करके एक इंस्ट्रूमेंट होता है इंडियन क्लासिकल, और वो संतूर मतलब हमारी जो म्यूजिक टीचर थी, शी यूज टू ट्रेन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स इन संतूर। सो मैंने फोर्थ क्लास से ही संतूर में ट्रेनिंग लिया, तो मतलब बहुत साल हो गए अब तो संतूर बजाते हुए। तो दैट इज समथिंग विच आई हैव, आई थिंक अ यूनिक टैलेंट जो है, क्योंकि मैं आई हैव नॉट सीन अ लॉट ऑफ पीपल प्लेइंग संतूर। तो म्यूजिक, तो ये सब मेरा क्लासिकल जर्नी था। अब कॉलेज में आने के बाद मतलब उसके बाद मैंने गिटार, मतलब अकोस्टिक गिटार और पियानो तो खुद ही सीखा था इंटरनेट से। तो बेसिकली व्हेन यू गेट अ फील ऑफ क्लासिकल म्यूजिक ना, तुम्हें बेसिक आइडिया हो जाता है बीट्स का, नोट्स का, देन इट्स इजी टू पिक अप वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स। तो सिंस मैं क्लासिकली ट्रेन थी, तो इट वाज इजी फॉर मी टू लर्न गिटार एंड पियानो। सॉरी, गिटार एंड पियानो नेट से भी। तो उसके बाद जब मैं कॉलेज आई, फिर तो मतलब फिर तो मेरे को इलेक्ट्रिक गिटार भी पकड़ा दिया, बेस गिटार भी पकड़ा दिया, एंड देन बेस गिटार बिकेम, मतलब बेस गिटार मैंने कभी पहले नहीं बजाया था, नाइदर आई न्यू ऐसा कुछ होता भी है। और फिर मतलब सीनियर्स की हेल्प से और सबसे, तो फिर मैंने बेस गिटार एज माय मेन इंस्ट्रूमेंट परस्यू किया बहुत सारे इवेंट्स में, आईएमसी में। तो बहुत ही मतलब डायनामिक जर्नी रही। काफी कुछ अलग अलग चीजें करी है आईएमसी में। ओके, मतलब इस पॉइंट पे मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगर शायद अगर ऑनलाइन नहीं होता तो यू वुड हैव बीन सेकी आप। नहीं, नो नो ये नो तो नो, होता ही। नहीं नहीं, सेक्रेटरी अलग चीज, वो अलग हो गया। सेक्रेटरी में मतलब क्लब को मैनेज करना भी आना चाहिए, वो चीज मेरे अंदर नहीं थी, मेरे को पता था। मैं बजा लूंगी, आई विल बी अ गुड परफॉर्मिंग पर्सन, बट मैनेज करना, मतलब वो मैनेजमेंट स्किल्स, वो अलग है। ओके, तो अच्छा, मतलब अगर आप सारी चीजें बजाती थी तो काफी आपने टाइम डिवोट करा होगा आई गेस। तो टाइम डिवोट आपने करा होगा अगर क्लब में, तो फिर क्लब के मेंबर्स से आई गेस की काफी क्लोज रिलेशनशिप बनी गए होंगे। तो एनी स्वीट मेमोरीज दैट यू वुड लाइक टू शेयर की दैट यू वुड चेरिश फॉर योर लाइफ आई गेस? विद द क्लब। Yeah, with the club or with those friends that you have made in that particular club, relating to the work of club or just uh, normal. ऑनेस्टली जितने भी आउटफेस्ट में आई वेंट, एवरी आउटफेस्ट हैज अ ब्रिलियंट स्टोरी टू टेल। मतलब बहुत ही मजा आया सबके साथ। um, लेकिन एक मेमोरी जो थी, जो मेरी फॉन्डेस्ट मेमोरी भी है, और बहुत मतलब क्या बोलूं, बीटी वाली मेमोरी भी है। दैट इज गोइंग टू बी बिट्स पिलानी ओएसिस का आउटफेस्ट। तो Okay. बिट्स पिलानी मतलब कब की बात, आई थिंक अक्टूबर में होता था। एंड हाँ, मतलब हमारा जब स्पर्धा होता है उसी के अराउंड, तो बिट्स पिलानी ओएसिस था।
एंड सीनियर्स ने भेजा हमको गिटार और इंस्ट्रूमेंट्स रिपेयर करने के लिए। तो गदोलिया करके एक जगह है वहीं वाराणसी में, हाँ। और वहाँ, हाँ, वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स रिपेयर करने जाना होता है, और इतना ट्रैफिक होता है, मतलब पैर रखने की भी जगह नहीं होती वहाँ। तो मेरा और एक मेरा फ्रेंड और मैं, हम लोग गए। अ, और मतलब सब कुछ स्मूथली हो गया, इंस्ट्रूमेंट्स रिपेयर हो गए, और शाम को हमको ट्रेन पकड़नी थी। मैं कैंपस में वापस आई एंड ही वाज ड्राइविंग, और एक्सीडेंट हो गया। तो मतलब मेरा पैर अरे। स्कूटी और ऑटो के बीच में। कुछ ओहो। टाइम तो वो ऐसा बहुत ही इमीडिएट इम्पैक्ट था। और तो वो एक्सीडेंट, मतलब अब वो ऐसे टाइम पे हुआ और ऐसे दिन हुआ कि मतलब क्या करें लिटरली। फिर हमने फोन किया, सीनियर्स सीनियर्स आए, हॉस्पिटल ले गए, एक बार चेक किया, एक्सरे में कुछ नहीं आया, विच वाज गुड। तो बट प्लास्टर चढ़ा था बहुत बड़ा। और हमें इमीडिएटली शाम तक ट्रैवल करना था। अरे तो sorry। मतलब और मैं परफॉर्मिंग मेंबर थी, तो मेरे को बेस गिटार भी बजाना था, तो स्टेज में परफॉर्म करना था। तो मतलब बहुत अजीब सा हो गया, फैमिली घर वालों से प्रेशर आने लगे कि नहीं जाना नहीं जाना। और फिर ऐसा भी था कि हमने इतना मेहनत किया था फॉर द आउटफेस्ट, की कैसे मिस करूं। तो बट the best memory which I have is कि everybody was so helpful, and I still remember everybody, the seniors, my batchmates, my close friends, everybody, मतलब I never felt the pain, honestly. um, एंड मेरे को ट्रेन में भगा के चढ़ाने से लेके मेरा सामान पैक करना, इवन माई रूममेट, मतलब फॉर दैट मैटर, शी हेल्प अ लॉट। हॉस्पिटल के जो भी एक्सपेंसेस थे, सब कुछ दे टुक केयर ऑफ एवरीथिंग। व्हील चेयर अरेंज करना, फिर जब हम दिल्ली पहुंचे, मतलब पिलानी गए, तो मतलब इट वॉज कम्प्लीटली स्मूथ। तो and I was very grateful for that, and even my family after that, they were like, अच्छा IMC है, then you can go। मतलब इतना उनको भरोसा हो गया, because everybody, मतलब दिल से सबने बहुत ही अच्छा किया था। और मैंने स्टूल में बैठ के फिर बेस गिटार बजाया था स्टेज पे। तो वो सब भी अरेंज करना, एंड लाइक इट वाज द बेस्ट एक्सपीरियंस। आई मीन, it's an irony to say that, but it was really an experience which changed my perspective, which changed my nature completely। कि सेल्फलेसली कैसे अपने लोगों के लिए काम, मतलब जब तुम करते हो तो क्या इम्पैक्ट आता है उससे, जब जिसको जरूरत होती है उससे। तो हम्म। हाँ। शांत रही। हेलो। डिस्कनेक्ट हो गया था। हम्म। अरे वो लाइट चली गई बस, और तो कुछ नहीं। हम्म, हम्म। आवाज आ रही है मेरी क्या आपको? हाँ हाँ, आ रही है। ओके ओके। मतलब ये था, एक तो ये हो गई बिट्स फलानी वाली आपकी कहानी हो गई। इसके मैं मतलब इन जनरल ही पूछ रहा हूँ कि इसके अलावा कभी कॉलेज में कोई बीटी हो गई हो जो आपको लगा हो कि मतलब आप कुछ करना चाह रहे हो या कुछ प्लान बनाओ और अचानक एवरीथिंग वेंट फ्लैट, आप सब क्लूलेस हो गए कि चीजें कैसी ऐसी हो गई हैं। मतलब हमारा तो ऑनलाइन में एक थोड़ा सा एक्सपीरियंस रहा है, ऑफलाइन में आपका कुछ एक्सपीरियंस रहा हो? कॉलेज फेस्ट में ही मैं पूछ रहा हूँ। अह, यार मुझे याद नहीं आ रहा है ऐसे, मतलब कॉलेज में हम्म। हुई तो होंगी जरूर, बहुत बीटी हुई। अरे हाँ, मतलब ऐसा एक बार ऐसा होता है कि आई हैड टू परफॉर्म फॉर इंडिपेंडेंस डे, हम्म। and I had to play Santoor. So the dosa wanted me to play Santoor. He was ओके। apparently a fan of Santoor. तो उन्होंने, तो संतूर के साथ क्या है ना, बहुत डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट है, इट हैज 100 स्ट्रिंग्स। सो हम्म। ह्यूमिडिटी उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। हम्म। दैट इज वाई, तो डोसा की परमिशन से हमने जो डोसा का एयर कंडीशन रूम था वहां पे संतूर रखवा दिया, कि इमिडिएटली परफॉर्मेंस के दिन आई जस्ट टेक द संतूर एंड प्ले इट। तो वो सब कुछ सेटल हो गया, सारी बात हो गई, एंड देन जब सुबह इंडिपेंडेंस डे के दिन परफॉर्म करना था उसको, आई थिंक लिटरली 10 मिनट्स उसको हमने बाहर सेटअप किया। हम्म। एंड जब मैं बजाने गई तो इतना बेसुरा हो गया था वो मतलब वो 10 मिनट की गर्मी गर्मी में भी वो पूरा डिट्यून हो गया। और वो इतना ओके। एम्बैरेसिंग था, अब मुझे कंप्लीट करना था, मिड मिड परफॉर्मेंस, तो मैं रुक नहीं सकती थी, सब लोग हम्म। एवरीबडी वाज मतलब वेटिंग कि क्या है कुछ नहीं। और वो बिल्कुल, तब डोसा ने अनाउंस कर दिया था कि सो एंड सो विल बी परफॉर्मिंग, ब्ला ब्ला ब्ला।
और देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल देयर, तो मेरे को बस वो इतना डिट्यून एंड आई हैड टू परफॉर्म, एंड मैं पता नहीं कैसे ही कर रही थी बट वो परफॉर्म करना पड़ा। और सब परफॉर्मेंस के बाद सब लोग ऐसे, स्पेशली जिनको म्यूजिक सेंस था, वो लोग तो ऐसे कि ये क्या हुआ मतलब। तो मतलब बहुत ही एम्बैरस, उसके बाद मेरे को ऐसा हो गया नहीं, कॉलेज में संतूर बहुत ही डिफिकल्ट है हैंडल करना, मतलब इट इज अ वेरी डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट। तो वो बड़ा एक एम्बैरेसिंग बोल लो या मतलब बहुत बीटी वाला एक सीन हो गया था। ओके, मतलब उसके बाद आपको लगा हो कि आई विल स्टिक टू बेस गिटार नाउ, बेस गिटार इज माय लाइफ, ये तो नहीं बजाना अब मेरे को, ये तो ना हो पाए मेरे से। मतलब क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स में, स्पेशली क्लासिकल में भी संतूर यार, देयर आर 100 हम्म, स्ट्रिंग्स, सो यू हैव टू ट्यून 100 स्ट्रिंग्स, तो इट हम्म, टेक्स मतलब 1 घंटा, एंड उसमें भी फिर ड्यू ट्यून कोई भी एक स्ट्रिंग हो जाए ना, तो उसका हम्म, साउंड की क्वालिटी पूरी चली जाती है। तो हाँ, लेकिन अब वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स में ये है कि स्ट्रिंग ज्यादा नहीं है, 6 स्ट्रिंग्स होती हैं और उसको हम्म, इमीडिएटली ट्यून कर दो, तो ज्यादा हैंडी था। फिर संतूर मैंने मतलब बाद में फिर नहीं, उतना नहीं बजाया। ओके। और मैं पूछ रहा हूँ कि आप लोग भी आई गेस नाइट आउट्स वगैरह पे जाते रहोगे, जैमिंग वगैरह करते रहोगे, तो व्हाट वाज योर फेवरेट स्पॉट इन बनारस? अगर आपने फोर्थ ईयर में, जैसा आपने एक्सप्लोर करा था बनारस फाइनली फोर्थ ईयर में, तो ये तो मेमोरी रिसेंट होगी। हाँ, मतलब ऐसे सिटी में नाइट आउट भी मैंने फोर्थ ईयर में ही किया पहली बार, अदरवाइज तो नाइट आउट ओके। मेरा क्लब में ही होता था, प्रैक्टिस सेशंस या जो भी। हम्म, um, तो यही था, घाट पे चले जाते थे। और वन ऑफ माय फ्रेंड्स, मतलब शी विजिटेड मी, तो उसके पास यूकेलेली था, तो हम्म, यूक लेके, यूक इज वेरी हैंडी, तो उसको कहीं भी हम्म, कैरी करते करते, तो वॉक घाट पे, मतलब पूरा 80 घाट से लेके दशाश्वमेध, फिर उससे आगे पूरा वॉक करते करते कुछ भी जैमिंग, मतलब जिसको अब बेसिक कॉर्ड्स बजा दो अपना, वही जी माइनर सी डी, और उस पे बस जो गाने आते जा रहे हैं गाते रहो। तो मतलब वो वॉक, और वो क्योंकि यूकेलेली इज वेरी लाइट, तो अपना उसको अपना हम्म, चलते चलते बजाते रहो, और बीच में जहाँ पे हम्म, अम, आरती करने के पंडाल होते हैं, वो एरिया रात में इट इज मतलब कम्प्लीटली खाली, तो वहां हम्म, पे हम बैठ के फिर एंजॉय करते थे गंगा नदी का ओके, व्यू भी। और मतलब लेमन टी मिलती थी, मिलती है मतलब घाट पे, तो वो ले लिया और हम्म, बस अपना जैमिंग कर रहे थे। तो वो लास्ट ईयर में मैंने ज्यादा किया है ये सब चीजें पहले मैं नहीं उतना करती थी। तो हाँ, ये ओके। करती है। अच्छा, ओके। नहीं, ये तो मतलब ये सारी तो वो चीज हो गई कि आपने घूमा, आपने मस्ती करी। अभी जब आपका वो ऑनलाइन हो गया था, फिर उसके बाद दोबारा आपका कुछ दिन के लिए ऑफलाइन हुआ था, तो आपको लगता है कि आपने ऑनलाइन जितने दिन के लिए कॉलेज ऑनलाइन हुआ, उसमें आपने कहा कि हाँ कुछ टाइम में आपको सॉलिट्यूड चाहिए थी, बट आपको लगा कि अगर ये पैंडेमिक नहीं आता तो शायद मैं थोड़ा और एंजॉय कर पाती, या ये चीज मेरी बच गई, इसको कंप्लीट करती, या ये बकेट लिस्ट में मेरी रह गई थी जिसको मैं टिक करने की कोशिश करती? अ, जिस समय लॉकडाउन था ना, उस समय लगता था कि बहुत कुछ था जो रह गया करने को कॉलेज में, हम्म, हम्म, अब्रप्टली एंड हो गया। हम्म, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने वो जो रिमेनिंग चीजें थी वो फोर्थ ईयर में कंप्लीट कर ली थी। हम्म, बकेट लिस्ट, एक गोवा ट्रिप होती है वो कर ली थी हम्म, फ्रेंड्स के साथ, नाइट आउट हो गया था, हम्म, पूरा बनारस की जो गलियां हैं वो एक्सप्लोर कर ली थी, हम्म, um, और बोटिंग, बहुत बोटिंग कर ली थी। तो मतलब मोस्टली जो चीजें होती हैं वो सब कर लिया था। एक मतलब हाँ, और एक चीज बस जो यही था कि जूनियर्स जो थे, मतलब आई थिंक कि उनके साथ कोई आउटफेस्ट मिल नहीं पाया, मतलब उन लोगों के साथ उतना टाइम स्पेंड नहीं कर पाई मैं। हम्म, अपने क्लब के जूनियर्स हो गए या ब्रांच के जूनियर्स हो गए, तो उनसे बात रहती थी, हम्म, बट वही था कि एक जैसे हम लोगों ने अपने सीनियर्स के साथ एक जो डेवलप किया थ्रू हम्म, आउटफेस्ट एंड थ्रू ऑल बीटीज, वो मैं नहीं, मुझे लगता है कि वो टाइम मिस हो गया विद जूनियर्स। बट ओके, हाँ, ये भी है कि हमारा जो क्लोजिंग हुई वो इंटर आईआईटी के बाद हुई, इंटर आईआईटी 2019 शायद, हम्म, हाँ, जिसमें हम लोग सेकंड आए थे, और वो मतलब वो सिंस अचीव हो गया ना, तो ऐसा लगा कि चलो मतलब हाँ, कि कॉलेज में कुछ तो मतलब अच्छा कर लिया वैसा। तो वो बहुत ही इमोशनल था वो इंटर आईआईटी में जो
जीते थे। तो इंटर आईआईटी में जब आप सेकंड आए थे तो मतलब उसकी प्रिपरेशन कैसी थी, या उस टाइम भी लोग कहते रहे होंगे आई गेस कि हाँ तुम तो नहीं जीतोगे, तुम्हारी लेगेसी ही नहीं है जीतने की, बट आप जाके फाइनली जीत के आए थे। सो फिर जीत के आने के बाद भी तो कॉलेज में कुछ हाँ एक सेलिब्रिटी मतलब वाली फील रही होगी। नहीं नहीं ऐसा नहीं था, बट हाँ जो मतलब आई थिंक जो सीनियर्स थे ना, तो एक्चुअली ऐसा था कि हम लोग हम लोगों ने बहुत ही क्या कहेंगे चैलेंजिंग परफॉर्मेंसेस दिया था थ्रू आउट द ईयर। तो बिट्स पिलानी ओएसएस में भी कुछ गलतियां हुई थी जहाँ से सीखा, हम्म, केवाई में कुछ प्रॉब्लम्स थी वहां से सीखा। तो इंटर आईआईटी वो सारी मिस्टेक्स को करेक्ट करता हुआ एक इवेंट। एंड जो हमारे सीनियर्स थे, जो सेक्रेटरीज और जॉइंट सेक्रेटरीज थे उस टाइम, मतलब उन लोगों ने बहुत ही बढ़िया तरीके से ग्रूम किया था। आई थिंक उस समय का जो भी ग्रुप था, इंटर आईटी हम्म, का जो कंटिजेंट था, सो हम्म, इवन आफ्टर द परफॉर्मेंस हमें नहीं लग रहा था कि जीतेंगे, बट समहाउ वो पता नहीं इट टर्न्ड आउट कि द जजेस लाइक आवर चॉइस ऑफ सॉन्ग्स, दी जो भी हमने इंस्ट्रूमेंट्स बजाया, जबकि आईएमसी में इतना एडवांस हमारे पास ना साउंड सिस्टम होता था, ना इतना क्या कहेंगे इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होते थे इतने जो कि बाकी आईआईटीज के पास होता है। फिर भी आई थिंक एक जो बॉन्ड डेवलप हुआ था ना बिटवीन द इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, मतलब ऐसा प्रैक्टिस होता था हमारा कि हम्म, एवरीबडी न्यू एवरीबडीज पार्ट्स। तो अगर कोई गिटार पे कुछ ना कुछ गलत नोट बजा रहा, सब यूं देखते थे उसकी तरफ, ये गलत है। तो मतलब इतना ज्यादा कोऑर्डिनेटेड था वो ग्रुप। तो आई okay, थिंक दैट वाज द रीजन। तो वो इतनी सारी प्रैक्टिस एंड देन इतने टाइम का वो जो हमने साथ में बैठ के ट्रेन किया है अपने आप को, या जो जैम किया है, तो वो बेसिकली वी वर फ्लोइंग टुगेदर इन द म्यूजिक। हम्म, तो वो भी बहुत मैटर करता है। तो इवन इफ वी डिड नॉट हैव लॉट्स ऑफ advanced instruments या sound systems, but just that bond and that coordination जो उस ग्रुप में डेवलप था, आई थिंक उसकी वजह से बहुत मतलब दैट वाज द रीजन कि हमको मिल पाया। ओके। तो अभी हो गया। अच्छा ये था कि जैसे हमारा अभी ऑनलाइन से ऑफलाइन ट्रांजिशन था, तो फ्रेंड सर्कल को लेके काफी कॉलेज में चर्चाएं थी कि ये मेरा फ्रेंड था बट अब उसका सर्कल चेंज हो गया, इसका। थोड़ी देर रुक जाओ, आ रही है दी। गेट बंद नहीं की, गेट बंद करिए। हेलो।
हेलो दी, Hi. फाइनली। एक्चुअली थोड़ा सा सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, बट मेरे को समझ नहीं आया, अचानक से पॉज हो गया था। हमें फ्रेंड सर्कल के बारे में पूछ रहा था कि लोगों के चेंज हो रहा है, और ये एक्चुअली एक एपिडेमिक आप मान सकती हैं। तो आपने तो 4 साल बिताए हैं, तो मतलब व्हाट्स योर टेक ऑन फ्रेंड्स एंड लोनलीनेस एंड आइसोलेशन एंड थिंग्स लाइक दैट? Hmm. Uh, okay. So basically, मेरा तो यार एक ही मतलब मेरा एक ये मेन मोटिव रहा था that I would in terms of friendship, I really wanted quality over quantity friends, ओके। and this has always been there. So I might not have lots of friends, but जितने भी दोस्त थे, I knew I could rely on them, and they are not. I mean, if I have to share something, they are not going to take it the other way. So यही था, मोस्टली मेरे क्लब के ही फ्रेंड्स थे, एंड देन धीरे धीरे डिपार्टमेंट के भी बने थे बहुत सारे फ्रेंड्स। तो आई मीन होता क्या था ना कि समटाइम्स लाइक इन माय केस व्हाट हैपेंड वाज दैट आई ऑलवेज प्रायोरिटाइज माय स्टडीज। I tried ओके। to do that. Okay, so I mean, this was something that which was a personal choice. ऐसा नहीं है कि मैं पार्टीज में नहीं जाती थी या फिर मैं चिल नहीं करती थी, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ if I know that I have an exam tomorrow or if I know that I can't really miss this deadline, then मैं मना कर दूंगी। तो बहुत बार ऐसा होता था कि some people might find it rude or some people might not like it, कि उनको लगता था अरे हो तो जाता है मैनेज, इतना भी क्या, इट्स नॉट अ बिग डील और ये वो। बट अगेन तो वो एक चीज थी कि आई मीन यू हैव टू मेक इट वेरी क्लियर कि दिस इज हाउ यू आर एंड these are your choices, these are your priorities. तो अगर there are some friends which will accept you the way you are और वो अकोमोडेट करेंगे उस चीज को, क्योंकि सब लोग अलग होते हैं। सम पीपल विल टेक टाइम टू ग्रास्प अ कॉन्सेप्ट, बट सम पीपल विल डू इट ओवरनाइट, हो जाएगा जल्दी। तो उन लोगों को चिल करने का समझ भी आता है, बट देर आर सम पीपल हु टेक टाइम। तो वो समझना कि हर इंसान अलग होता है और उसको उस हिसाब से जज करना चाहिए फ्रेंडशिप में। तो सो वही है कि व्हेन यू आर चूजिंग योर सर्कल स्पेशली इन कॉलेज, आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू सी कि हाउ द अदर पर्सन परसीव्स यू। वो एक जरूरी चीज है, ओके। मतलब डू नॉट ओवर शेयर विद समबडी। यू माइट कंसिडर कि यार कुछ टाइम बाद हो सकता है इससे फ्रेंडशिप ना रहे, या अगर ना भी रहे तो ही माइट बैड माउथ यू समवेयर। तो क्योंकि बहुत बार फ्रेंडशिप्स हो सकता है टूट जाएं, बट तुम्हें पता है कि वो इंसान का नेचर ऐसा है कि तुम्हारे अगेंस्ट नहीं बोलेगा या तुम्हारे लिए कुछ बुरा नहीं बोलेगा पीछे या जो भी है। सो काइंड ऑफ मतलब अपना एक अपनी लाइफ में पीस भी रखना बहुत जरूरी है कॉलेज में, नहीं तो बहुत बीटी होती है। तो इसीलिए अपना सर्कल चूज करते समय बहुत वाइजली करना चाहिए, मतलब इट कैन मेक यू और ब्रेक यू, ऐसा देखा है ओके। मैंने। फ्रेंड सर्कल की बात कर रहे हैं। हाँ, फ्रेंड सर्कल। ओके। ओके। क्योंकि सो वही फ्रेंड्स होंगे जिनके साथ तुम मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेंड करोगे, तो उनकी आइडियोलॉजीज क्या हैं, उनका लाइफ की तरफ किस तरीके का एक परसेप्शन है, वो बहुत मैटर करता है। ये नहीं कह रही कि लाइक माइंडेड लोगों के साथ रहने का फायदा है, बट इट्स जस्ट दैट somebody who is adding positivity, ये नहीं कि तुम्हें that other person is making you feel bad in your own skin or in your own personality, then that is not a friend, है ना। तो मेरी रूममेट इनफैक्ट, आई मीन इट्स द बिगेस्ट एग्जांपल, इतनी ऑपोजिट है, शी इज कम्प्लीटली ऑपोजिट, लेकिन वी गॉट अलोंग सो वेल। लाइक इन द एंड सब कुछ शी डज ऑपोजिट टू व्हाट आई वुड हैव डन, लेकिन वो है कि आई अंडरस्टैंड हर द वे शी इज एंड शी अंडरस्टूड मी द वे आई एम, सो वी वर वेरी रिस्पेक्टफुल ऑफ ईच अदर्स बाउंड्रीज, एंड सो वी वर फ्रेंड्स, वी शेयर्ड अ लॉट ऑफ स्टफ जो किसी को भी नहीं पता थे, बट रूममेट्स को पता रहते हैं अंदर की बातें। सो वो है। तो ये सब मैंने सीखा कॉलेज में कि बहुत वाइजली सर्कल चूज करना है एंड जज नहीं करना है इमीडिएटली। ओके। So now moving on towards the next question is that who is that one person in IIT that changed you the most or maybe influenced you the most in a positive way, I guess. It may be a friend or a senior or a college professor, anyone. प्रोफेसर तो नहीं। um, um,
Yeah, so I have a friend. I mean, there are lots of people actually in different aspects. Like किसी ने academically बहुत motivate किया, किसी ने musically बहुत motivate किया. But Hmm. if I want to name one person who, um, I mean, who influenced me in every aspect possible and who made college life the best, तो there is one person, उसका मैं नाम नहीं लूंगी, but समझने वाले समझ जाएंगे. But यही है कि मेरा perception changed a lot. Hmm. I learned a lot from him, and uh, yeah, he influenced me in a lot of ways. Okay. So, do you think that he will be your lifelong friend, no matter what career pursuits you choose and things like that? Yeah, definitely. ओके सो नाउ कि ये सवाल तो काफी क्लीशे है बट स्टिल सवाल में काफी वेट है कि इफ you'd be ported back to your first year and then you have to start, so what will be 2 or 3 things that you would do? Oh, Yeah, yeah, you can complete the question. क्वेश्चन बस ये था कि अगर if you were ported back to your first year, just 2 or 3 things that you want to do different, that maybe mistakes that you made that you don't want uh, freshers to make. Okay. I think one thing which I could have done was I could have explored more. College में आते ही I was only मतलब choosing only these two things जो मैंने बचपन से हमेशा पसंद किया है, which was badminton and music. I did not try anything else. So I think एक तो ये कि a lot of times when you try something, you will know that you are actually good at it. Like I saw a lot of people who were not into photography, but they are great photographers right now and like heading the photography club and everything. So uh, इसलिए ऐसा experience मैंने नहीं किया. I mean, I was not probably not that extrovert to do that or something, or I might not would have found time for that. लेकिन ये मैं करना चाहती अगर I had more time. कि I would have explored more areas. Um, हम हाँ और बस आई थिंक यही था. उसके अलावा एक यही कि कॉलेज एक्सप्लोर थोड़ा पहले से करती तो थोड़ा शायद कम बुरा लगता बाद में निकलते हुए, पता नहीं. कोई ना, तो अंत भला तो सब भला. इफ मतलब हाँ आपने फोर्थ ईयर में तो फाइनली कर ही लिया, तो फर्स्ट ईयर में हाँ जो करे, एग्जैक्टली. फर्स्ट ईयर में हम करें, अगर हम कर चुके हैं तो फोर्थ ईयर में तो हम बोर होंगे. आपका फोर्थ ईयर में पहला एक्सपीरियंस था. हाँ ये भी सही So, बात है. experience. क्लोजर मिल गया बेसिकली, वो क्लोजर जरूरी था. हाँ, वो क्लोजर जरूरी था. मतलब डिस्पाइट ऑल ऑफ दीज थिंग्स, मतलब अगर मैं थोड़ा एजी सवाल पूछूं, तो जैसे आपने कहा भी था कि जैसे कॉलेज में काफ़ी चीज़ें हम करते हैं या कॉलेज में काफ़ी चीज़ों का हमें शुरुआत से एक्सपोजर मिलता है. थिंग्स लाइक कि करियर हो गया या फ्रेंडशिप हो गया या कुछ लोगों का रिलेशनशिप हो गया या कुछ लोगों का मतलब अदर परसूट्स जो लोग 4-5 चीज़ें लेके चलते हैं. सो और आपने भी लेके चला था, मतलब आपका आईएमसी था, आपने फिर रिसर्च में आप थे, फिर आप बैडमिंटन में भी थे. मतलब एक आइडियल स्ट्रेटजी क्या हो सकती है चीजों के बीच में बैलेंस बना के रखने की, अगर आपसे मैं पूछूं तो? गुड क्वेश्चन यार, बहुत अच्छा. Okay. कॉलेज लाइफ आई थिंक यही है द बिगेस्ट लर्निंग यू कैन गेट आउट ऑफ कॉलेज इज हाउ डू यू मैनेज योर टाइम. मतलब और यही चीज तुम्हें आगे चल के लाइफ में हर जगह लगेगी. डिफरेंट एस्पेक्ट्स है, क्लब है, एकेडमिक्स है, फ्रेंडशिप है, सबको बैलेंस आउट करना है. एंड ऑल्सो ये भी जानना है कि तुम्हारा गोल क्या है एंड यू हैव टू मूव टुवर्ड्स दैट ऑल्सो. तो यही चीज है कॉलेज में जो फिगर आउट करनी है. सो आई थिंक द फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू स्टार्ट नोइंग योर सेल्फ पहले कि व्हाट आर योर बाउंड्रीज.
how much time you need, how much breaks you need, and basically how important is socializing for you. कुछ लोगों के Okay. लिए फ्रेंडशिप इज ऑल, मतलब फ्रेंड्स नहीं है तो वो दे कैन नॉट फंक्शन. लेकिन कुछ लोगों के लिए दे कैन फाइंड पीस इन देयर ओन कंपनी ऑल्सो. So Mhm. maybe उतना they do not require कि 24/7 they need a friend to constantly boost them up या whatever. तो एक तो ये फाइंड आउट करना है कि what you how you are basically programmed, and then उसके अकॉर्डिंग build your priorities over that foundation, I think. तो मेरे को पता था that I wanted to prioritize my studies because मेरे को research में जाना है, and I knew I have to independently do it. तो कोई आएगा नहीं जो बोलेगा कि अरे पढ़ो नहीं हो रहा, या प्लेसमेंट में ये आएगा वो आएगा ये करते हैं, ऐसा नहीं था. जो भी था अपने लिए सब कुछ खुद करना था. सो प्रायोरिटाइज किया मैंने स्टडीज को ओवर एनीथिंग. Even there were some outfits which clashed with the exams का preparation. So I opted to not go for those. तो मैं वहाँ पे एकदम क्लियर रहती थी कि ये नहीं हो पाएगा मुझसे. तो firstly ये कि when you know yourself, when you are dedicated towards your goal, you should act accordingly. Don't give in to peer pressure. Don't give in to अरे लोग क्या सोचेंगे. बिकॉज पीपल जो तुमको जेन्युइनली मैटर करेंगे ना, जो तुम्हारे लिए जेन्युइनली सोचेंगे, दे विल एक्सेप्ट यू द वे यू आर, लाइक आई सेड. तो लेकिन अगर तुमने ये टाइम मिस कर दिया, या इफ यू मिस द टाइमिंग ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ ना, तो बाद में फिर रिग्रेट होगा कि यार इस समय पढ़ लिया होता या इस समय कर लिया होता तो शायद बेटर ऑफ होता. हो सकता है 10 साल बाद नहीं लोगों को फर्क पड़े कि मैंने कहाँ परफॉर्म किया था, बट अगर मैंने मेरा करियर में फोकस नहीं किया होता तो शायद मुझे वो होता कि उस समय कर लेती. तो सबका अपना अपना मतलब सोचने का तरीका था. मेरा ये था क्योंकि मेरी फील्ड बहुत डिफरेंट थी बाकियों से, सो आई हैड टू टेक द कंट्रोल ऑफ माय ओन लाइफ. Okay. तो इस लेकिन आई ऑल्सो न्यू दैट म्यूजिक वाज समथिंग व्हिच वाज अ थेरेपी. आई कैन नॉट लिव just by studying, and I was somebody who likes to explore new places, new food. तो ये भी चीज़ें मुझे चाहिए थी अपनी कॉलेज लाइफ में, तो मैंने उसके लिए भी टाइम निकाला. बट ऐसा नहीं था कि अब एग्जाम है तो मैं एक रात पहले निकल रही हूँ, ऐसा नहीं. तो वहाँ पे मैंने पढ़ाई प्रायोरिटाइज करी. सो मतलब अकॉर्डिंगली चला. एंड समटाइम्स यू ऑल्सो लूज सम फ्रेंड्स इन दिस प्रोसेस बिकॉज एवरीबडी डजंट अंडरस्टैंड. हाँ, तो उस चीज़ का भी थोड़ा दुख है कि कभी कभी ऐसा किसी किसी को बुरा लगा होगा. बट ओवरऑल अगर मैं देखूं तो मैंने बहुत अच्छे, आई हैव मेड ग्रेट फ्रेंडशिप्स, एंड आई हैव मेट ग्रेट जूनियर्स, ग्रेट सीनियर्स, जिनको मैं जेन्युइनली रिस्पेक्ट करती हूँ, जो जेन्युइनली मुझे रिस्पेक्ट करते हैं. तो आई थिंक दैट्स ऑल आई नीड. Okay. So now as we are coming towards the end of this fun session, तो आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है मतलब? फ्यूचर प्लान अभी तो इमीडिएटली यही है कि मेरा 1 सितंबर से पीएचडी प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है यूसी सेंटा क्रूज में. सो वही अब 5-6 साल तो वही है प्लान. पीएचडी कंप्लीट करना है, रिसर्च करना है, एंड स्किल डेवलपमेंट करनी है. अब उसके बाद आई डोंट नो वेयर आई विल एंड अप विद. इट डिपेंड्स ऑन द जर्नी ऑफ माय पीएचडी. सो शॉर्ट टर्म एम्स ही हैं, ऐसा लॉन्ग टर्म एम तो कुछ नहीं है अभी. देखते हैं बाकी उसके बाद. अभी तो उसी की तैयारी है. Is there something that you want to achieve in upcoming 5 or 10 years? A post, a job, a dream job, maybe something that you are ambitious about? Of course, I mean, I need a job after PhD. I mean, इतने साल में भी नहीं हुआ तो फिर तो गड़बड़ है. But हाँ, तो वो तो एक है ही aspiration. अब वो in which field I end up working, that's not clear right now. But I want to settle in US. That is my Okay. plan, and I thought it has been that for a very long time. There are some other plans as well, which I want कि वो भी इतने smoothly हो जाएं जितना ये एक first step हुआ. So basically, I want to settle for a very balanced life. I have never thought of कि इतना पैसा आ जाए, इतना ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसा नहीं है. I just want to be happy कि because whatever I dream, I would be able to achieve. बस उतना चाहिए. And एक balanced life चाहिए. हर चीज़ हो, healthy life भी हो, job भी अच्छा हो, relationship भी हो, सब कुछ हो. तो एक बैलेंस लाइफ का मन है, और वो अगर 5 से 10 साल में मिल जाए तो बहुत अच्छा है. Okay, okay.
So now coming to the those final 5 questions that we may call rapid fire questions that you can answer in one word or one sentence, or if you want to elaborate, just go on. So the first question is best piece of advice you have ever got. Best piece of advice. Yeah. Best piece of advice is ki, um, don't judge immediately. When I came to college in my first year, me being from Delhi, it was very natural that I found Banaras a little chaotic. So it was very difficult to adjust initially, but I learned a lot because in college you get people from different parts of the country, who came from different backgrounds, walks of life. So धीरे धीरे वो चेंज हुआ, बट मुझे इनिशियली आई डिड नॉट रियलाइज दैट आई वाज बिकमिंग जजमेंटल फॉर एवरीथिंग, इमीडिएट जजमेंट कि यार ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, ऐसा या फिर मतलब ऑटो में नहीं जाना, आई वांट टू टेक द कैब, ऐसा. तो मतलब देयर वर फ्यू फ्रेंड्स हु केप्ट मी ग्राउंडेड. सो दैट इज वन piece of advice, that don't judge anything very quickly. So, yeah. Okay. The second will be one incident that influenced you the most. Incident. Incident mean someone else's achievement, or you had seen someone else's real hard work, genuine hard work, and then they succeeded, and you get inspired. Like, this is something that I want to make this thing happen in my life. Some sort of things like that influenced you the most Yeah, so in there college. were some seniors. I mean, there were different seniors. They kind of influenced me basically in research, like for pursuing a different line, completely different line. So there were some people who had done that, like some of my seniors, if I would name Harsh Baldi Bhaiya and Nidhi Agrawaldi. Like these two people were like really very. I would look up to them when I was in my first year or second year, because they literally dedicated their times to research and were very happy doing it. So yeah, I mean, lots of seniors. I talked to a lot of people, Priyanshi Purvaldi also. So their decisions and how they achieved it, their dreams, how they achieved it, that was very inspirational. So I knew that if that's possible, they can do it. So it is not impossible. So I could have, maybe there are lesser people doing it, but it is possible. So definitely, like these people influenced me a lot. Okay. The third question is one achievement that you will cherish for your life that you had in college, to be specific. Achievement. College achievement. One achievement which is due. अभी पता नहीं वो achievement बनेगा कि नहीं. That I will definitely cherish अगर वो achievement बन गया. But otherwise, I think all these little achievements which I was able to crack. Hello. हाँ हाँ हाँ. हाँ, तो अचीवमेंट में मेरे को तो वही है यार. सेकेंड ईयर में अचीवमेंट था कि इंटर्नशिप क्रैक किया. देन से थर्ड ईयर में भी 2 इंटरनेशनल इंटर्नशिप्स आई क्रैक्ड. So all these little achievements which I cracked throughout the different years, they were also like a boost. So like I'm happy with every achievement I had. So Okay. So just rank these things according to your priority order: friends, relationship, career, and passion. In college. career and Passion. Like music passion. was your passion, someone else's passion, maybe dance or something like that. Okay. Uh,
You said career, friendship, relationship, and passion, right? That's yeah. Okay. Uh, mm, I would keep passion and relationship as the first one. Then, Mhm. if you are passionate enough, you'll have a good career. So, career and friendship. And if you understand relationships, you'll have good friendships. So, yeah. So, Yeah. passion and relationships, and then career and friendships. Okay. So, anything else you would like to say, as you have been graduated? So, all the 4 year, every student from, I guess, from first year to fourth year is listening to you. So, Uh, any advices that you yeah. have, So, or any closing remarks? hmm. Uh, So for my juniors, I would say that I really wanted to spend more time with them, be it from Yeah. my club juniors or the department people. And I keep trying to answer to them also, as in when they approach me with some queries. And I'm sorry if I delay your responses for some students Mhm. I was mentioning. And apart from that, for the juniors, it's just like, keep on exploring. It's and I'm completely available whenever you need me, but otherwise just kind of try to find your place in the college. uh don't don't just keep following the um bhed chal. Mhm. You might be made for a different purpose, and it is very important कि पहले you identify that, नहीं तो फिर it's very difficult to change lines later on. Only then you can enjoy your life, if enjoy your college life, if you are very comfortable with your academic career का prospect. नहीं तो वही एक बहुत बड़ी टेंशन हो जाती है. So that is one thing. And for my batchmates, I would say कि I'll miss everybody, and I'll try to keep visiting as much as possible, और वहाँ की convocation में तो मिलेंगे ही. And thank you to every friend I've had in every part of my college life. They have shaped me in every way. So yeah, I love everybody. Okay. I'm sure they love you too. So the last thing, maybe this maybe related to vanity, but something I really want to ask is, what do you think is the biggest benefit that you have got from studying in IIT? Oh, uh, the biggest benefit is that the level of students, because you end up studying the same things everywhere. You will study maths, physics, or whatever these engineering concepts in every college, but what differs here in IIT is um, the people, the people, and the fact that they are coming from different backgrounds. So you gain a lot of perspectives. You see that there are so many things you can do, and there's also a certain intellectual level which you will Mm. find here, in certain people, and that helps a lot. Like, I had friends who motivated me initially. Take take the, take this path. I mean, you can do this. This is also a field you can explore. uh, so certain those kinds of like intellectual points, and also the because I feel like especially in IIT PH, the freedom you get, that if you utilize to your to your advantage, it's really really great. So वो जो freedom मिलती है, वो एक space मिलता है to explore everything apart from academics if you want to take. किसी को फोटोग्राफी में इंटरेस्ट आ जाता है एंड दे टेक अप अ करियर इन दैट साइड आल्सो. बहुत सारे आईआईटीएंस राइटर्स भी बन जाते हैं. So freedom, I think that freedom and that multicultural input from different people, वो एक एक्सपोजर शायद रीजनल कॉलेजेस में या स्टेट कॉलेज में नहीं मिले, जहाँ पे थोड़े से एक ही तरीके की कॉन्सेंट्रेटेड कैटेगरी रहती है. सो या, and also even in your the placement, maybe IITians they get preference. And even in my research, so US may they don't know, I mean US and also other countries, they don't know any other college, but they will know IIT.
तो IIT है, BHU बॉम्बे, उससे इतना फर्क नहीं पड़ता. IIT है, so they will know it. तो वहाँ पे also you get an edge. तो हाँ, ये perks तो बहुत हैं. अब जब आप यूएस सॉरी यूसी सेंटा क्रूज जा रहे हो तो वहाँ के क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपके कि यहाँ जाऊंगी मैं तो ऑफ कोर्स आईआईटी से आने के पहले कुछ एक्सपेक्टेशंस है, नाउ यू हैव हिट सम रियलिटी, नाउ यू हैव इनफ रियलिटी चेक आई गेस, सो आई गेस कि आपके एक्सपेक्टेशन थोड़े से लोअर हुए होंगे यूसी में जाने के पहले, तो एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? हाँ, मतलब expectations, I am very excited and nervous at the same time. Excited इसलिए क्योंकि I've always dreamt of staying in abroad and then studying there, doing the research in US specifically, and UC Santa Cruz was always my dream university because of their research. So I'm very excited to explore, like, India mein I did research, but like I know that UC yeah in US basically वो research का level अलग होगा. So I'm